of all, let's go through a quick video explaining this chapter, which is the digestive system and teeth. The process by which food is broken down into simpler form to be easily absorbed by the body is known as digestion. The different organs which are involved in this process together form the digestive system. The digestive system. The digestive system comprises of the mouth, food pipe, stomach, liver, small and large intestines and the anus. Mouth. The digestive process begins in the mouth. Food is softened with a watery substance called saliva. Teeth and tongue break up the softened food into small parts. Food is then swallowed and it moves down the food pipe. Food pipe. Food from the mouth passes through the food pipe and reaches the stomach. Stomach. The stomach is a large sac-like organ. The food is broken down further with the help of digestive juices until it becomes like a paste. From the stomach, the food moves into the small intestine. Liver. It secretes a digestive juice which helps in digestion of food and absorption of nutrients. It secretes this juice into the small intestine. Small intestine. The small intestine is a long coiled tube. Here, the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the walls of the small intestine into the bloodstream. The blood absorbs the nutrients of the food and carries to all parts of the body. The undigested food is pushed into the large intestine. Large intestine. Food that cannot be digested passes into the large intestine. Here, the minerals and extra water are absorbed by the blood. The waste called feces is then expelled out of the body through the anus. Anus. Semi-solid feces are eliminated out of the body through an opening called the anus. Help your digestive system to function properly. Drink a lot of water. Eat a balanced diet that includes fiber-rich food. Take small portions of meals at regular intervals. Wash your hands properly before and after every meal. Chew your food properly. Teeth. Teeth are important to us as they help us in chewing the food. They also help us to speak clearly and give a good look to our face. We have temporary teeth by the time we grow 2.5-year-old. At about 6 to 7 years of age, our temporary teeth start falling one by one. A new set of teeth starts growing to take their place. This set has 32 teeth and these teeth are called the permanent teeth. Kinds of teeth. The set of teeth we have are divided into 4 kinds based on their functions. These 4 kinds of teeth are incisors, canines, premolars and molars. Incisors. The incisors are shovel or chisel-shaped teeth at the front of the mouth. An adult has 8 incisors, 4 in each jaw. They are used for biting and cutting the food. Herbivores have sharp incisors to bite and cut leaves, grass and fruit. Canines. Canines are pointed teeth present right next to the incisors in both the jaws. There are 4 canines in an adult's mouth. They are used for tearing and ripping the food. Carnivores have sharp pointed canines to catch and kill their prey and to tear its meat. Premolars. Next to canines are the flat and broad teeth called premolars. There are 8 premolars, 4 in each jaw in an adult's mouth. Their function is to crack, crush and chew the food. Molars. Molars are present behind the premolars. They have points and grooves. They are used for grinding and chewing the food. There are 6 molars in each jaw of an adult. A tooth and its parts. A tooth may be divided into 2 parts, crown and root. The crown is the visible part of a tooth. The root is the anchor of a tooth and is inside the gums. Take care of your teeth. Following are some ways to protect your teeth from decaying. Brush your teeth after every meal. Use floss to clean the gaps between the teeth. Clean your tongue daily with a tongue cleaner. Visit your dentist regularly for checkups.
Do not eat too many sweets and chocolates and avoid drinking too many sweet drinks. Eat lots of fruits and vegetables which are healthy for your teeth and gums. Food rich in calcium like milk and cheese are good for teeth. Okay. After this video, let's start our chapter, the digestive system and teeth. लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा है, कौन सा है लास्ट पार्ट अपना, फूड एंड न्यूट्रिशन, कि हमारी ग्रोथ के लिए कौन सा फूड हमारे हमने ईट करना चाहिए, इससे हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो हमने लास्ट पार्ट में देखे हैं. सो ये हमें फूड क्यों ईट करना है, बिकॉज हमारी प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, हम हेल्दी होने चाहिए, इसके लिए हमें क्या होता है ज़रूरी, फूड ईट करना बहुत ज़रूरी होता है. उसी तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा है, देखिए हमारे ऑर्गन्स देखे, डिफरेंट ऑर्गन्स देखे हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. सो इस चैप्टर में हम उनकी कौन से सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज. फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हमें एनर्जी मिलने के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एंड हमें हर डिसीज हमसे हमें दूर भगाने के लिए हमें प्रॉपर फूड ईट करना बहुत ज़रूरी है. द डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड दैट वी ईट कैन नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी डायरेक्टली. कुछ फूड ऐसे हैं कि हम ईट करते हैं बट वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं. दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है किस तरह से वर्क करती है, क्या उसका फंक्शन है, हम आगे देखने वाले हैं. सो देन द न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स आने वाले होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखे है, उसका डीपली हम यहाँ पर देखने वाले हैं. उसी तरह से ये जो है हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, किससे किया जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो भी हमने देखा है. यू हैव लर्न अर्लियर दैट द प्रोसेस बाय विच फूड इज broken down into simpler form to be easily absorbed by the body is known as digestion. So digestive system जो है किस तरह से वन बाय वन माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, किस तरह से वो कहाँ से कैसे ब्रेक होते हुए जाता है, वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है. और जैसे हम फूड ईट करते हैं किस तरह से कहाँ पर क्या एब्जॉर्ब किया जाता है और हमारी होल बॉडी को जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से प्रोवाइड किया जाता है, इसी को हम क्या कहा जाता है, डाइजेशन. द डिफरेंट ऑर्गन्स which are involved in this process together form the digestive system. Okay, let's start next. The digestive system. Digestive system में कौन से internal organs आते हैं देखेंगे. फर्स्ट है माउथ, जहाँ से हम फूड अपने जो बॉडी में लेना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज माउथ. देन फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो अंदर की साइड में हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा लंबा होता है, स्मॉल है बट ये लंबा होता है. देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट इज एनस. ओके, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स. ओके, हर एक के फंक्शन हम आगे देखते हैं. फर्स्ट इज माउथ. द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ. डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से. जब हम माउथ में लेते हैं, देखते हैं आगे कैसे हम उसको फूड को कैसे क्या प्रोसेस होती है. फूड इज फर्स्ट सॉफ्टन विद द वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा. देखिए हम कहते हैं कि कोई अगर खट्टी चीज हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उस पानी को क्या कहते हैं, सलाइवा. यस, इसकी हेल्प से क्या होता है, हम जो फूड ईट करते हैं वो सॉफ्ट करते हैं. द टीथ एंड टंग break up this softened food into small parts. जो फूड हम ईट करते हैं किसकी हेल्प से वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है. सो हमारी टीथ एंड टंग की हेल्प से वो क्या होता है, स्मॉल पीसेस में कट होता है. और क्या इसमें क्या मिक्स होता है, वाटरी सब्सटेंस, जिसे क्या कहते हैं, सलाइवा. लार जिसे हम कहते हैं वो क्या है, सलाइवा. The food is then swallowed and it moves down the
फूड पाइप देखिए सिर्फ हम माउथ में क्या करते हैं, चीव करते हैं, वहीं पर वो सॉफ्ट होता है, सिर्फ क्या होता है, सॉफ्ट होता है। एंड देन सॉफ्ट होने के बाद टीथ एंड टंग से वो ब्रेक करने के बाद सलाइवा की हेल्प से वो सॉफ्ट होने के बाद कहाँ पर जाता है, फूड पाइप में, जो कि हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। देखते हैं वहां पर क्या होता है, फूड पाइप। नेक्स्ट क्या है, फूड पाइप। फूड फ्रॉम द माउथ passes थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेस द स्टमक। फिर फूड पाइप में कुछ भी प्रोसेस नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली माउथ से फूड पाइप में होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। देखिए बिंगोस को एक क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फूड पाइप। देखिए फूड पाइप जो है, हमने जो हमारे पिक्चर में देखा है लास्ट स्लाइड में, जो फूड पाइप है उसे और नाम है, उसको दूसरा नाम है इसोफेगस। क्या नाम है, इसोफेगस। फूड पाइप कोई दूसरा नाम है इसोफेगस। सो नेक्स्ट देखिए, फूड पाइप से जो फूड हमने चीव किया है वो फूड पाइप से होते हुए कहा जाता है स्टमक में। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक। फूड पाइप से फूड कहाँ आता है, सॉफ्ट होने के बाद स्टमक में। द स्टमक इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। जो स्टमक है वो कैसे है, एक थैली है हमारे जो बॉडी में है। ये जो स्टमक है वो थैली की तरह है। थैली की तरह क्यों कहा गया है, बिकॉज इसे चीव करने के बाद फूड में माउथ में वो कहाँ पर जाता है, डायरेक्टली फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। इसीलिए ये कैसा ऑर्गन है, एक थैली की तरह। Here the food is broken down further with the help of digestive juices until it becomes like a paste. फिर ऐसे होता है क्या, हमने फूड चीव किया है मुंह में और उसका ब्लड तैयार हो गया, तो ऐसे नहीं है। वो फूड पाइप से जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पर भी वो क्या होता है, टूटते जाता है। सिर्फ सॉफ्ट होता है हमारे माउथ में, देन सॉफ्ट होने के बाद जब हमारे स्टमक में जाता है तब उसकी क्या होती है, पेस्ट होती है। डाइजेस्टिव ये जो जूस है हमारे स्टमक में, उसकी हेल्प से ये जो फूड है वो टूट जाता है और ब्रेक डाउन किया जाता है और उसकी क्या तैयार की जाती है, पेस्ट। कहाँ पर, हमारे स्टमक में। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर अभी आगे कहाँ जा रहा है फूड, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, देखते स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या है, लीवर। देखिए हमने जैसे पिक्चर में देखा है कि लीवर के पास ही क्या है, स्टमक है। सो लीवर का भी क्या फंक्शन है, द लीवर सेक्रेट्स अ डाइजेस्टिव जूस व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट सेक्रेट्स दिस जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर जो है, लीवर में भी क्या है, एक डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। लीवर में भी क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और यहाँ से फिर वो कहाँ कैरी किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है अभी, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। जैसे कि हम पिक्चर में देख चुके हैं, वो क्या है, कॉइल की तरह हमें दिखाई देता है, कॉइल ट्यूब की तरह। फूड फ्रॉम द स्टमक पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड फिर स्टमक से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। Here the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the wall of the small intestine into the blood stream। देखिए जैसे हमने माउथ में फूड ईट किया है, चीव किया है, उसी से वो सॉफ्ट हो गया। सिर्फ सॉफ्ट होने के बाद फूड पाइप से वो कहाँ आया है, हमारे स्टमक में। एंड देन स्टमक में क्या होता है, जो हमारे आगे जिससे पास आउट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं, उससे पास आउट कब कैसे होता है, जब वहाँ पर अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, उससे पास होकर क्या कैसे होता है, ये स्टमक में पेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्लड फॉर्म में वो रेडी होता है। एंड देन होल बॉडी को क्या किया जाता है, फिर सर्कुलेट किया जाता है। द ब्लड absorbs the nutrients of the food and carry it to all parts of the body। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में इसकी पेस्ट होने के बाद इसका ब्लड कहाँ पर, ब्लड फॉर्म में कहाँ पर रेडी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन इसके जो बॉल्स होते हैं, इसके थ्रू वो कहाँ कैरी किया जाता है, ऑल बॉडी को कैरी किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज
पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पुश किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पर देखिए बिंगो का कुछ नॉलेज है, क्या नॉलेज है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कितनी लंबाई है इसकी, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है ये। ओके, सी नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन फूड। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर पुश किया जाता है। फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड passes into the large intestine। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पास किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। Here the minerals and extra water are absorbed by the blood। ब्लड से फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। द वेस्ट कॉल्ड फेसेस इज देन एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड पुश किया जाता है, इसके आगे क्या होता है, जो हमारे बॉडी का वेस्ट है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर फेंका जाता है। देखते हैं एनस। द सेमी सॉलिड फेसेस आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस। फिर एनस के थ्रू क्या है, जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनस के थ्रू क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर किया जाता है। ओके, इस तरह से क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने देखी है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे फूड ब्रेक होते होते हुए आगे जाता है एंड कैसे एनएस के थ्रू से बाहर फेंका जाता है। जो रिमेनिंग ओके जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। बाय बाय।